Hello aspirants. So today, as you can see on the whiteboard, this is the question which got tossed in our class and we had a pretty good brainstorming session over it. As you can see, the question is a little peculiar. In fact, this question originally has been picked up from this marvelous book called Your Rove 1.93, and as you can see in this unique question, something new has been provided as a part of information. अभी तक हम लोग जितना भी पुली वाला क्वेश्चन कर रहे थे, we were dealing with massless frictionless pulley as well as thread, but over here in this particular question, as you can see, it has been clearly stated that there is friction between the thread and the pulley. The thread is definitely weightless, but you cannot neglect the friction between the thread and the pulley. So let's dive deep into it and let's do our diagnosis and prognosis with this kind of question where friction also comes into play when we are handling pulley mass system questions. Okay, let's have a thorough read of the question first. A fixed pulley carries a weightless thread with masses m1 and m2 at its end. Okay, so we got a fixed pulley. This is my fixed pulley, right? And it has been fixed over here. Carries a weightless thread with masses m1 and m2 at its end. Okay, so I'm gonna do like this. This is my weightless thread and this is my m1, and the weightless thread passes through the pulley, and finally we have here m2. So let's do a little bit of axis. That's my axis. I think I should use a thinner line. This is my axis. Okay. So masses m1 and m2 hanging around a pulley through weightless thread. There is friction between the thread and the pulley. It is such that the thread starts slipping when the ratio m1 over m2 is k. m2 by m1 should be k. Okay, so here maybe I didn't copy the question correctly. So the thing is m2 by m1. So as of now, m1 and m2 is hanging like this. I think I should keep this one as my, I prefer to keep this one as my m1 and this one as my m2. Okay, so this is my m1 and this is my m2. You can have either way, but I'm just drawing it like this. So let's draw the free body diagram first of all. So you got m2g acting downwards, you got m1g acting downwards. Now in all questions of this pattern, we usually took the tension in the thread as T without any variation, right? पूरा thread एक ही है, massless thread है, massless pulley है, friction भी नहीं रहता, तो पूरे thread में कितना tension रहता? Tension T रहता. But since my friction is acting on this weightless thread from point A to point B, I'm not having the luxury to have my tension throughout A to B same. Can you understand this concept? Because हर point पे A से B आप चलते जाइएगा, ऐसे अगर चल रहे हैं तो हर point में you will find though the thread is weightless but इसका इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हर पॉइंट पे वैरी करते हुए जाएगा. तो टेंशन अगर एंड ए पे आप T1 मान रहे हैं, वहां से M1 पे टेंशन इधर लगेगा T1,
और एंड ए को अगर मैं पकड़ के चलूँ तो इस पे टेंशन T1 इधर लगेगा, राइट। लाइकवाइज मास 2 के लिए टेंशन ऊपर होगा, कितना T1 ही लेंगे, नहीं, क्योंकि T1 से T2 तक वैरी करते आ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, M2 ओवर M1 जब K बन जा रहा है तब जस्ट स्लीपिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब K का वैल्यू सपोज करो 3 था, तो जब तक M2 3M1 नहीं हुआ है तब तक क्या स्टेटस है, टोटल स्टेशनरी स्टेटस है। Though M2 is more than M1, we are assuming M2 more than M1, but still it is not like 3M1. I am assuming the value of K as 3. तो क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा ब्लॉक में, टोटली स्टेशनरी है ब्लॉक। इस केस में दोनों ब्लॉक स्टेशनरी है। पर सपोज करो ये बकेट है M2 और M1 और हम M2 में आप और मास डालते जा रहे हो, तो एक पॉइंट यू विल रीच व्हेन your M2 will be equal to say 3K1 3M1। K का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं 3 है। तो जहां ये स्टेटस रीच हो गया तब M2 और M2 इधर जाने लगा, टेंडेंसी शो करने लगेगा, टेंडेंसी शो कर रहा था बट जस्ट स्लीपिंग स्टार्ट होगा और M1 ऊपर भागने लगेगा, राइट। जस्ट भागना शुरू करेगा, भागने लगेगा नहीं, जस्ट भागना शुरू करेगा, मतलब स्लीपिंग हैज जस्ट कमेंस्ड व्हेन M2 हैज बिकम इक्वल टू KM1। अगर K का वैल्यू 3 मान रहे तो M2 3M1 के बराबर हुआ तभी स्लीपिंग कमेंस हुआ, उसके पहले M2 M1 दोनों स्टेशनरी था, देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल। और ये स्टेशनरी मूवमेंट क्यों था, भले ही M2 M1 से ज़्यादा था, अगर फ्रिक्शनलेस पुली रहता तो M2 जरा सा भी ज़्यादा रहता M1 से, डोंट यू थिंक M2 would have started accelerating downward and M1 by the pull of the tension or the tension of the spring would have started exhibiting an acceleration, same acceleration in upward direction। अगर frictionless रहता pulley, there wouldn't have been any friction acting between the pulley and the massless thread। बट यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन होल्ड किए हुए, अभी स्लीपिंग स्टार्ट नहीं होने दिया है। जैसे ही M2 KM1 या सपोज करो 3M1 के बराबर हो गया, जहाँ पे M2 में और मास ऐड करते जा रहे हैं, M2 जैसे ही 3M1 हो गया, जस्ट स्लीपिंग शुरू हुआ at that particular instant। So that is the crux of understanding that was here in this question। So you need to understand that tension B पॉइंट A से पॉइंट B तक पूरा वैरी करते जा रहा है और टेंशन इज नॉट यूनिफॉर्म, T नहीं रहेगा पूरा थ्रेड में। पॉइंट B से M2 तक T2 ही रहेगा, ये थ्रेड में T2 रहेगा पूरा टेंशन। लाइकवाइज ये वाले थ्रेड में भी पूरा T1 टेंशन T1 ही रहेगा, मगर पॉइंट A से पॉइंट B अगर हम लोग अपवर्ड पार्ट ऑफ सेमी सर्कल में ट्रेवल कर रहे हैं तो विल सी दैट एट ईच स्मॉल एलिमेंट of the massless thread you will find friction is playing a significant role, and because of which the tension is varying at each and every infinitely small elements of the string DL। चलिए, तो हम लोग को ये सिचुएशन दिया हुआ है, M2 हमारा जस्ट KM1 हुआ है, जस्ट स्लिपिंग शुरू हुआ है, अभी एक्सेलरेशन अटेन नहीं हुआ है बट जस्ट स्लिपिंग हैज स्टार्टेड टू गेट एग्जिबिटेड। अब इस केस में हमें सबसे पहले निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। हाउ डू यू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में बहुत सारा इन्फिनिट नंबर ऑफ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स है स्ट्रिंग का। अब हमें एनालिसिस करना होगा एक छोटा सा एलिमेंट DL लेके। तो कैसे उसको करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स। लेट्स सी, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम लोग थीटा पे डी थीटा का। ओके, थीटा पे क्या ले रहे हैं, डी थीटा का। ये कितना है हमारा थीटा, तो ये कितना है डी थीटा। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रिंग का यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे DL है, स्ट्रिंग का लेंथ DL एलिमेंट है जिसका एनालिसिस चल रहा है।
So just for the sake of clarity, I am drawing this figure in a large manner so that you guys can have a better understanding. So this is our status. अब देखिए यहाँ ये है मेरा डी थीटा है, ओके, और ये है मेरा डीएल एलिमेंट। इसको ऐसे बनाता हूँ। चलो भाई, ठीक है। तो इस फिगर में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अप्रोच का रिक्वायरमेंट है और ट्रिग्नोमेट्री का भी हेल्प लेना होगा। लेट्स सी हाउ वेल वी कैन परफॉर्म आवर रेंडिशन। चलिए, ये कितना हो गया? ये हो गया डी थीटा बाई 2। ये सब इधर भी रेडियस आर है, इधर भी रेडियस आर है। सो डोंट यू थिंक इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओ ए बी? ओ ए नहीं ले सकते हैं, ए तो हम लोग अलग पॉइंट ओ पी क्यू को आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेते हैं। ओके, अब जो होगा यहाँ पे जो टेंशन, ये जो एलिमेंट है डीएल एलिमेंट, इसको कैसे हम लोग यहाँ फिगर में दिखाएंगे? ये इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक, so that you have a clear understanding. चलिए, ये हमारा हो गया डीएल एलिमेंट। I hope the diagram is pretty clear, क्योंकि diagram is very important. As I always say, you need to make your mind understand. पॉइंट P पे जो टेंशन लग रहा होगा वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर लग रहा होगा। इसको हम लोग मानते हैं T, और ये एलिमेंट है DL, छोटा सा लेंथ है, जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री गिरा दिए, तो ये एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल ये वाला एंगल हो गया आपका डी थीटा बाई 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर हो गया आपका T। What about the tension at point Q? Will it remain T? No, it will vary. चूंकि एलिमेंट DL है तो हम मानते हैं कि थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया होगा पॉइंट Q तक जब हम पहुंचे तो यहाँ पे भी एक टेंजेंशियल टू द रेडियस वेक्टर हम टेंशन लगा देते हैं, कितना? T प्लस dt। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये T प्लस dt हो गया और इसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ? एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये 90 है, तो ये वाला आपका हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई 2, करेक्ट। और इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2, तो ये वाला हो जाएगा अगेन आपका डी थीटा बाई 2, राइट। ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा डी थीटा बाई 2। सिंपल ज्योमेट्री है, not much of a problem over here. Likewise इस एंड में भी टेंशन पे जो एंगल होगा वो डी थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ये सब एंगल हम लोग डिटरमाइन कर लिए बाय यूजिंग आवर सिंपल ज्योमेट्री। ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पॉइंट ओ से हम लोग ने एल्टीट्यूड गिराया है साइड पी क्यू पे, और टी प्लस डी टी और टी जो है दैट those tensions are perpendicular to the radius, right?
तो उस हिसाब से हमारा ये एंगल सिंपल कैलकुलेशन से आता है। देखिए ये डी थीटा बाई 2 होगा, ये वाला, ये कितना होगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो यू विल एंड अप हैविंग डी थीटा बाई 2, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, now let's so the concept is clear, right? at point P जो टेंशन होगा वो T है, तो अगर पॉइंट Q पे हम टेंशन लिखेंगे तो उसको कितना लिखेंगे T plus dt। why there has been an increase in tension from point P to Q over the infinitesimally small element that we took for our analysis dl? Why? Because of the friction that is existing between the pulley and the massless thread। तो अब T प्लस डी टी का ये वाला कंपोनेंट मुझे कितना मिलेगा, T प्लस डी टी बोलिए साइन डी थीटा बाई 2, करेक्ट। लाइकवाइज टेंशन, ये टेंशन T का पॉइंट P पे ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, T साइन डी थीटा बाई 2, नो प्रॉब्लम। अब जो डीएल एलिमेंट है इसका मास होगा कुछ, कितना मास होगा बताइए जल्दी से, 0। क्यों? क्योंकि ये थ्रेड कैसा है, वेटलेस थ्रेड है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो डीएल एलिमेंट का भी मास 0 होगा। और जब ये डीएल एलिमेंट को ये दो फोर्स आपके, कौन दो फोर्स, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2, दोनों का डायरेक्शन सेम है टुवर्ड्स ओ, तो ये दोनों क्लब टुगेदर करके जो नेट रिजल्टेंट लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसको हम मान ले रहे हैं F1 फोर्स, इसको F2 फोर्स, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, F1 प्लस F2, करेक्ट। अब ये जो F1 प्लस F2 मेरा आया, तो डोंट यू थिंक डीएल एलिमेंट पे F1 प्लस F2 यानी R जो लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ पुली भी डीएल एलिमेंट पे एक फोर्स लगाएगा, राइट। अब पुली जो लगाएगा डीएल एलिमेंट पे फोर्स, वो किधर लगाएगा, ऐसा लगाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट डीएल पे कंसीडर हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल डीएफएन। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ से स्मॉल एलिमेंट डीएल आपने लिया, डीएल किस पे पड़ा हुआ है, पुली के मतलब एक आर्क पे पड़ा हुआ है, पुली के एक आर्क पे, जो कि सेंटर पे एंगल डी थीटा बाई 2 सबटेंड कर रहा है, डी थीटा सबटेंड कर रहा है। तो अब जब उस पर रिजल्टेंट फोर्स F1 F2 लगेगा डीएल पे, तो वो पुली को भी प्रेस करेगा F1 प्लस F2 से, पुली को प्रेस करेगा तो पुली भी वापस डीएल को एक नॉर्मल फोर्स देगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा, करेक्ट। तो वो उसको रिएक्शन को फोर्स को हम लोग कितना से डिनोट कर रहे हैं, DFN, और उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू माय रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 के बराबर होगा। क्योंकि इस डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, इन दिस डायरेक्शन DL जो एलिमेंट है DEM मास का, जिसका मास का वैल्यू 0 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इन एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस से हमें एक इक्वेशन डिटरमाइन हम कर सकते हैं, d प्लस डी टी, बोलते जाइए, साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2 should be equal to dfn, right? Okay, so this is my first equation।
ये इक्वेशन को इफ यू ट्राई टू क्लीन दिस इक्वेशन अ लिटिल, क्या मिलेगा मुझे दे बताइए, 2t sin d theta by 2 along with you will get another thing dt sin d theta by 2 is equal to dfn। कुछ बच्चों का अप्रोच था क्लास में कि सर ये तो सर्कल पे है तो मे बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल आल्सो कम इनटू प्ले। सो आई एक्सप्लेन टू देम you shouldn't be neglecting the fact that dm is equal to 0. It's a weightless thread, small element, very small element dl which you are considering having a weight of dm which is 0. So मास ही इसका एलिमेंट का 0 तो इस पर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे आप। इसलिए नेट रिजल्टेंट फोर्स F1 plus F2 should be mathematically equal to your dfn, that is the reaction force or the as per Newton's third law, the reaction force which the pulley is exerting on the element dl. dl एलिमेंट पे दो फोर्स लग रहा है F1 और F2, जिसकी वजह से वो पुली को प्रेस कर रहा है कितना से F1 plus F2 से, जिसकी वजह से पुली रिएक्शन एक दे रहा है एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ से कितना dfn, एंड ये दोनों रिजल्टेंट और dfn का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड जस्ट इक्वल होगा एज पर न्यूटन्स लॉ। सो उससे हमारा ये इक्वेशन फ्रेम आउट हुआ और मैथमेटिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्लीन इट दिस अप। तो इससे हमें पता चलेगा ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टी डी थीटा, क्योंकि एज डी थीटा विल अप्रोच टेंड टू 0 साइन डी थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन डी थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा आपका डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली टी डी थीटा, राइट, क्योंकि साइन डी थीटा बाई 2 किधर टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो साइन डी थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू डी थीटा बाई 2, 2 विल गेट कैंसिल आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विथ टी डी थीटा प्लस डी टी अगेन साइन डी थीटा बाई 2 तुम्हारा किधर टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो इट विल एक्सपेल आउट डी थीटा बाई 2। तो dt into d theta by 2 infinitesimally small quantity है, तो we can take it as 0 and this will be equal to your dfn. So this is my first equation which says that t d theta is equal to dfn. Okay, now let's focus on the component of force along the light blue line. इसके अलाउंग अब हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोग इस लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग काम किए थे, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं सो दैट इट इज मच मोर इजली विजिबल टू यू। अभी तो हम लोग इसके अलाउंग परपेंडिकुलर काम किए थे, अब इसके अलाउंग देखते हैं क्या सिचुएशन है, राइट। तो इसके अलाउंग में जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है आपका बताइए, t प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है t कॉस डी थीटा बाई 2, मगर वो ऑपोजिट है तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ t कॉस डी थीटा बाई 2। मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो जस्ट टेल मी इज दिस इक्वेशन क्लियर टू यू। दिस इज माय F1 cos d theta by 2 and this is my F2 cos d theta by 2 प्लस फ्रिक्शन, डीएल एलिमेंट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा,
तभी ना टेंशन बढ़ा है, टी से टी प्लस डी टी हुआ है पॉइंट पी टू क्यू पे। तो डीएल एलिमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू इस पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ड्यू टू द पुली ऑन द एलिमेंट डीएल। रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, डीएफएन। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब इसको हम लोग फिर क्लीन करते हैं मैथमेटिकली। जैसे साइन डी थीटा बाई टू एंड डी थीटा बाई टू टेंड्स टुवर्ड्स 0, साइन डी थीटा बाई टू का मैथमेटिकल वैल्यू कितना हो जाता है, डी थीटा बाई टू। लाइकवाइज कॉस डी थीटा बाई टू एंड डी थीटा बाई टू टेंड्स टू 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यू विल बी लेफ्ट विथ, टेल मी, यू विल बी लेफ्ट विथ टी प्लस dt t plus dt is equal to t plus mu fn। Just see if the equation is correct, क्योंकि ये वैल्यू तो पूरा 1 हो जाएगा ना जैसे ही डी थीटा बाई टू विल टेंड टुवर्ड्स 0। So you are left with t plus dt on the LHS, and on the RHS you are left with t plus friction force। Friction कितना है, mu times dfn। तो this will give you an equation, simply dt is equal to your mu dfn। और dfn इक्वेशन 1 से आप निकाल चुके हैं, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। dfn कितना हो गया, mu dt t d थीटा, दैट्स इट। इससे आपको क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, सिंपल इक्वेशन, dt बाई t इज इक्वल टू mu d थीटा। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज इंटीग्रेट नाउ। थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड टेंशन विल वैरी फ्रॉम t1 से t2 तक। So now this will fetch you, integration of 1 over t is ln t, so this will give you ln t2 over t1, right, is equal to mu times pi। और इससे finally you are able to determine the first part of the question, that is the coefficient of friction, which will give 1 over pi ln t2 by t1। I hope the solution is pretty clear to you, step by step, how we used each and every part, each and every information that was provided in the question to solve this beautiful question। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां बच्चों को मुश्किलें फेस करना पड़ा था in my class। The first one was about how to resolve t and t plus dt। So I hope it is pretty much clear from the diagram which we have, enlarged diagram which we have displayed over here and worked upon it। Likewise फिर बच्चों को समस्या हुई थी ये वाला मैथमेटिकल जार्गन को रिजॉल्व करने में। sin d theta by 2, when d theta by 2 tends to 0 will fetch you a value which is nothing but 0, correct, will fetch you a value which is nothing but 0। so यहाँ sin d theta by 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, d theta by 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, you will be left with only t plus t d theta। और ये वाला केस में dt sin d theta by 2 will become dt into d theta by 2, and dt into d theta, that is two infinitesimally small quantities, if you are trying to multiply, will fetch you 0। okay, and this should be equal to the reaction force given by the pulley on the small element dl।
और जब आप ये एनालॉजी यूज कर रहे हैं मैथ्स का, तो लाइकवाइज यू आर सपोज टू यूज द करेक्ट एनालॉजी फॉर कोसाइन डी थीटा बाई 2 जब टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो कॉस डी थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1. So that will give you a second equation, and then from this you can easily do a little bit of integration and you can determine the value of coefficient of friction. How the solution was pretty clear to you. अब हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं. So I'm going to clean my whiteboard. We have already determined the value of mu 1 over pi ln t2 by t1. अब पार्ट 2 के लिए हम लोग चलते हैं. पार्ट 2 पे चलने के लिए कि यहीं पे बना देते हैं, नॉट मच ऑफ ए सिचुएशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. पार्ट 2 में द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन m2 ओवर m1 इज k डैश. अब k डैश सपोज करो k डैश का वैल्यू है 5, तो स्लिपिंग तो कब स्टार्ट हुआ था जब m2 वाज इक्वल टू 3m1. अब नाउ द सिचुएशन इज आप m2 को बढ़ाते जा रहे हैं एंड यू हैव रीच्ड वैल्यू ऑफ m2 इज इक्वल टू 5m1. तो इस केस में तो डेफिनेटली स्लिपिंग सब हो चुका रहेगा एंड योर m2 will start exhibiting acceleration in the downward direction. Likewise m1 will start exhibiting the same acceleration in the upward direction. टेंशन t1 t2 रहेगा दोनों में. बट अब इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब जो है यहाँ पर शुरू वाले केस में जब स्लिपिंग जस्ट शुरू हुआ था तो we were permitted to write t2 is equal to m2g, और यहाँ पे we were permitted to write t1 is equal to m1g. क्योंकि स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हुआ था, एक्सेलरेशन अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ था. ये वाला जो रेशियो है इसको यू कैन सब्स्टिट्यूट फॉर k. तो आपका म्यू का वैल्यू कितना आ गया था 1 ओवर पाई ln k. म्यू का वैल्यू आपका आ चुका था पार्ट ए में कितना 1 ओवर पाई ln नेचुरल लोगारिथम k. बट अब k नहीं रहा रेशियो m2 और m1 का, k डैश हो गया है विच इज मच मोर देन k एंड m2 has started accelerating downwards. m1 with the same acceleration is now shooting upwards. अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा m2 के लिए बताइए. m2g minus t2 will become m2a. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 कितना हो जाएगा t1 माइनस m1g is equal to m1a. ये दोनों इक्वेशन को अगर आप थोड़ा हैंडल कीजिएगा एज यू हैव बीन डूइंग सो विद मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो आपको क्या मिलेगा. देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग. कितना हो जाएगा m1g ऐसे नहीं, बेटर अप्रोच रहेगा पहले इसको हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं. नॉट हैविंग इनफ स्पेस, सो इनफ स्पेस के लिए ही छोटा छोटा लिख देते हैं. नॉट मच ऑफ डिफरेंस. आई कैन राइट हियर m2g minus a is equal to t2 एंड इसके लिए क्या लिखेंगे m1 a minus g is equal to t1. अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. आपका कितना आ जाएगा m2 ओवर m1 दिया हुआ है आपको k डैश g माइनस a ओवर a माइनस g. अमेजिंग हो रहा है. m2g माइनस m2a इज इक्वल टू t2 आ गया और आपका m1a माइनस m1g yes
जी आपका हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा इधर, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ T2 over T1. देखिए तो is this correct what I have written? Please check out my calculation, because at times my calculations go haywire, and most of the time I rely upon my students because they are pretty good with their calculations, so they help me correct mine. जरा ऐसा देखिए तो क्या आ जा रहा है आपका, T2 G minus A on, यहाँ एक इक्वेशन शायद हम लोग गलत लिखे हैं, यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन में गलती है, राइट? नहीं, गलती नहीं है। T1 इज इक्वल टू, इधर के लिए तो एक्सेलरेशन तो इसका इधर ए है और इसका एक्सेलरेशन नीचे है ए, तो इसके लिए इक्वेशन हम लोग लिखें m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a। लाइकवाइज इसके लिए इक्वेशन क्या लिखे हम लोग, T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, करेक्ट? तो अब इसको रीअरेंज किए, T2 को इधर लेगा m2g, m2 कॉमन हो गया, g माइनस से, और इधर हो गया m1, इधर हो गया आपका m1, ये आ जाएगा इधर। हाँ, यहाँ थोड़ा सा गलती है, T1 हो जाएगा m1, कॉमन लेंगे तो a प्लस जी। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो रही थी हमारी, तो m2 ओवर m1, अब सिचुएशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग m2 ओवर m1, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू k डैश से, इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग g माइनस से, एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग a प्लस g। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव। T2 ओवर T1 ऑलरेडी हमें पता है कितना है, k है, तो इससे हमें आराम से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहाँ लिखूं, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा आपका, आई कैन राइट समवेयर अराउंड हियर, यू विल गेट योर एक्सेलरेशन एज g टाइम्स k डैश माइनस k अपॉन k डैश प्लस k। देख लीजिए कैलकुलेशन वाइज, this is what you will get the value of acceleration, if you, because we need to find the acceleration as per the part B of the question. So if you try to do a little bit of mathematics, I don't have enough space over here, I don't want to go in my डाउन, नीचे जो है ही हमारे पास स्पेस, so let's do our thing। पार्ट बी को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, we have already arrived over m2 over m1 g minus a upon g plus a। I hope how we arrived here is pretty much clear to you from the two equations of motion। उसमें थोड़ी सी गलती हो रही थी, उसको हम लोगों ने करेक्ट कर दिया था, क्योंकि when we are trying to find out T1, m1g will shift to RHS and that will fetch us m1 कॉमन लेने के बाद a plus g। So this is what we have। और इसके बाद हमें फिर क्या पता चलेगा कि इससे हमें a अगर निकालने को दिया हुआ है, m2 और m1 का वैल्यू अब कितना हो गया है, k डैश हो गया है, तो वी कैन राइट हियर k डैश इज g माइनस k डैश a
इससे देखिए तो न्यूमरेटर को LHS को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है k डैश है, और T2/T1 इसका रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में पिछला पार्ट ए से हमें पता है रेशियो k है, तो वी कैन राइट इज इक्वल टू k टाइम्स g प्लस k times a. Now from this we can easily determine the value of acceleration a which will be g common ले लीजिए आप, and you will be left with k dash minus k over k dash plus k. Okay, I hope part B is also pretty much clear to most of you. In fact, should be clear to all of you, I would say, because it's pretty simple. Part B is pretty simple. Part A was the place where you actually needed to utilize a lot of mathematics, geometrical concept, trigonometry, calculus also. Part B is straightforward, simple hai. So we have gotten the values of our friction coefficient as well as acceleration when the ratio m2 over m1 has become how much k dash, which is much more than k, and both the blocks are now exhibiting acceleration. Part A में acceleration का concept नहीं था, only slipping just commence हुआ था, उस aspect को deal करना था. Part B में since the ratio m2 over m1 has now shot up to k dash, which is much more than k, acceleration got involved and the equation of motion was modified. ये हो गया था equation of motion आपका. इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो गया था, ये और एक ये पार्ट बी के लिए. पार्ट ए के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, ये. I hope the solution is pretty much clear. The approach is also pretty much clear to all of you. Thanks for your patience, understanding, and commitment with my small little channel. I really appreciate your presence over my channel. Thank you. Please press the bell icon and hit the bell icon and press the like and subscribe button. Thank you.